So we'll start with where we stopped in the last class. So we have already completed the chapter. So we started with numericals in the last class. We did two of the numericals. So we'll do a few more. So it will take today's class as well as one more day, I suppose, to complete the whole numerical, because it is a big chapter and there are a lot of numericals which comes from this chapter. So इसको करते हैं जिससे ये CBSE वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाए. Let's start. So third question अगर हम देखें, a solid sphere is rolling on a frictionless plane surface about the axis of symmetry. Find the rotational energy of the sphere. Also find the ratio of rotational kinetic energy to total energy. तो आप ये देखो कि एक solid sphere है, is rolling on a frictionless plane surface. तो ये sphere है. So it is rolling about a frictionless plane surface. ठीक है, इस डायरेक्शन में. About the axis of symmetry. Find the rotational energy of the sphere. So अब अगर इसका मास m है, right, और इसका जो रेडियस है वो r है, ठीक है, इसका लीनियर वेलोसिटी लेट्स से v है, right? So अगर हम लोग को रोटेशन, एक तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid sphere about its center. तो सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर के अबाउट अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो दिस इज इक्वल टू 2/5 mr². सो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओमेगा इज इक्वल टू V/r, ठीक है, V/r, r रेडियस है. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ω². सो I का वैल्यू हाफ इंटू 2/5 mr² इंटू ओमेगा के जगह V/r होल स्क्वायर कर लो. ये 2 कैंसिल हो गया, राइट. mr²/5 v² अपॉन r². r² कैंसिल हो गया, mv²/5 हो गया. Now find the rotational energy, find the ratio of rotational energy to total energy. So अब उसके लिए पहले ट्रांसलेशनल टोटल एनर्जी निकालने के लिए ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालते हैं. तो ट्रांसलेशनल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². फोर्थ इक्वेशन में सो रेशियो ऑफ, सो टोटल एनर्जी अगर हम करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mv²/5 प्लस mv²/2. एलसीएम हम ले लेते हैं 10, तो ये यहाँ पे 2mv² प्लस 5mv². So this is 7mv²/10. This is the fourth equation. Sorry, fifth equation. Now we have to find the ratio of rotational energy to total energy. So ratio rotational energy divided by total energy.
सो द वैल्यू रोटेशनल एनर्जी का हम लोगों ने mv²/5 निकाल रखा है, डिवाइडेड बाय 7 mv²/10. So this is mv²/5 into 10 by 7 mv². mv² कट गया और ये 5 2s are 10 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 2/7, right? और द रेशियो इज 2:7. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? एक सेकेंड सर. नीट वाले बच्चों, तुम लोगों ने देखा नीट का जो पेपर था? यस सर. हाँ सर। लाइक किए क्वेश्चंस कुछ? अभी नहीं करे, पर अभी रात को किया करूंगा. सर, अभी वो देखा ही क्वेश्चन अभी था। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे वो तो, जो चलो अगले क्लास में हम लोग ना डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को थोड़ा. ओके सर. हाँ सर। तो खासकर जितना पोर्शन हमने कर लिया उतने क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही सकते हैं डिस्कस. चलो नेक्स्ट हो गया बेटा? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 kg/m². ठीक है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है 1.2 kg/m². इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 radians per second. In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joule, okay, for how much duration and acceleration of 25 radian per second square? So rotational kinetic energy is equal to 1500 joule. Acceleration 25 radian per second square. तो अल्फा दे रखा है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन 25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, सो हाफ इनटू आई इनटू, ठीक है, कह रहा है in order to produce a rotational kinetic energy for how much duration and acceleration, so half I omega square minus omega naught square. This is the rotational kinetic energy needed to increase the speed, है ना? So final kinetic energy minus initial kinetic energy, इसीलिए half I omega square minus omega naught square कर. This is equal to जो increase in kinetic energy होगा, this will be equal to 1500 joules. अब ये वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं. हाफ इंटू आई का वैल्यू 1.2 है, ओमेगा स्क्वायर हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू 1500. इसको कट करेंगे 0.6, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय 0.6. तो दिस इज 15,000 बाय 6. एक जीरो ऐड किया, पॉइंट हटा दिया.
2500. So ओमेगा का वैल्यू 50 रेडियंस पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया। अब हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हमें टाइम निकालना है कि भाई इस एक्सेलरेशन से कितने टाइम में वो उतना एनर्जी पे पहुंच जाएगा, तो उस स्पीड पे पहुंच जाएगा बेसिकली। सो ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा का वैल्यू 50 है, 0 प्लस अल्फा 25 इंटू टी। So time t is equal to 50 by 25, which is equal to 2 seconds. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. A thin hollow cylinder open at both ends and weighing 5 kg. तो पहले तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वो जो टेबल था वो सारा अच्छे से याद होना चाहिए आपको, है ना। तो एक हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप देखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of hollow cylinder is equal to mr square. So a thin hollow cylinder open at both ends and weighing 5 kg. So mass दे रखा है 5 kg, slides with a speed of 5 meter per second without rotating and rolls with the same speed without slipping. Compare the kinetic energy of cylinder in that case, in the two case. तो मतलब जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ठीक है, वहां पे रोलिंग के केस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो वहां पे दोनों का ऐड करके जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा उसका रेशियो दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया। सो दिस इज हाफ, मास 5 है, ठीक है, और स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 इंटू 5। सो 125 by 2, दिस इज 62.5 जूल्स। सेकेंड पार्ट में रोलिंग हो रहा है, रोलिंग हो रहा है विद सेम स्पीड, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो ये होगा ही, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। So rotational kinetic energy is equal to half I omega square, half into I, so this is mr square. Omega is equal to V by R, V square by R square. R square कट गया, हाफ mv square हो गया, ठीक है। So which is equal to again
62.5 joules. So total kinetic energy when rolling, जब रोल करेगा तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों होगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब 62.5 joules plus of 62.5 joules, so 125 joules. क्लियर बच्चों? लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Spherical ball of radius r and mass m is rolling without slipping on a horizontal table. तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसलेशनल. सो translational kinetic energy is half mv square. Rotational kinetic energy half I omega square. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो उस केस में ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होगा. तो हाफ इनटू स्फेरिकल बॉल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. 2 और 2 कट गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1/5 mv स्क्वायर. Now टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर. So this is half plus 1/5. LCM ले लिया हमने 10. 5 plus 2 mv square. So this is 7/10 mv square. हमें निकालना है percentage of kinetic energy which is translational. So percentage of kinetic energy is equal to translational मतलब half mv square divided by 7/10 mv square. mv square कट गया, 2 5s are अच्छा into 100. So this is 500 by 7. So this is 71.4%. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया ना सबने? Yes, Yes, sir.
Seventh question. कह रहा what constant torque should be applied to a disc of mass 10 kg and diameter 50 centimeter. तो यहाँ पे देखो जो डेटा दिया है पहले वो लिख लें. मास 10 kg दे रखा है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर होगा. इसको 0.25 मीटर लिख सकते हैं. तो 10 kg रेडियस निकल गया. सो दैट इट एक्वायर्स एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 pi रेडियन पर सेकेंड इन 4 seconds. तो angular velocity omega is equal to 2 pi radians per second. Time t is equal to 4 seconds. The disk is initially at rest on omega naught is equal to 0 radian per second and rotates about the axis through the center of the disk and in a plane perpendicular to the disk. So अब आपको जो टॉर्क निकालना है उसके लिए सबसे पहले तो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है. तो हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए और एंगुलर एक्सेलरेशन भी चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का सेंटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2. सो दिस इज 10 into 0.25 by 2. So this will be equal to 2 को इससे कट करेंगे 5 होगा. So 25 into 25, 625 into 5 है 3125. तो 0.3125 ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अल्फा निकाल लो. अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. सो 2 पाई माइनस 0. और 4 सेकेंड में, टाइम 4 सेकेंड है. सो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 which is 3.14 by 2 means 1.57. Now we have to find the torque. Torque is equal to I alpha. So I is 0.3125 into 1.57. So this is torque is equal to 0.49 Newton meter. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Next question is, a disc of radius 0.5 meter is rotating about an axis through its center and perpendicular to its plane. So radius is equal to 0.5 meter is given in the question. A tangential force of 2000 Newton is applied to bring the disc to rest in 2 seconds. So F is equal to 2000 Newton. Bring it to the rest मतलब final angular velocity is equal to 0 radian per second.
time t is equal to 2 seconds. Calculate the angular momentum of the disk. तो सबसे पहले तो टॉर्क निकाल लो. टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर. ठीक है. सो फोर्स है 2000 इंटू 0.5 1000 न्यूटन मीटर. ठीक है. अब टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So final angular momentum minus initial angular momentum divided by time. So जो final angular momentum है कह रहा है it is brought to rest. ठीक है ना. So brings the disk to rest. Final angular momentum मतलब I into omega 2 minus I omega 1 divided by t. Okay. Disk है. So इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट हम लोग को. अभी आपको ये कह रहा है फाइनल जो एंगुलर ब्रिंग्स डाउन टू डिस्क टू रेस्ट मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया. टॉर्क इज इक्वल टू 0 माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम. सो एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियल वाला था वो निकालना था, राइट. सो दिस इज इक्वल टू टॉर्क हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 1000 इज इक्वल टू अच्छा ये जो टॉर्क है ना बिकॉज ये स्टॉप कर रहा है डिस्क को, जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा. तो इसीलिए अगर इसका साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस 2000 इंटू 0.5 ऐसे लिखना पड़ेगा. तो ये माइनस 1000 माइनस एल आई अपॉन टाइम 2 seconds. So initial angular momentum is 2000. So initial angular momentum is equal to 2000 kg meter square per second. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है a flywheel of mass 25 kg has radius 0.2 meter. flywheel मतलब डिस्क होता है ना. मास 25 kg हो गया, रेडियस 0.2 मीटर. इट इज मेकिंग 240 revolutions per minute. Now what is the torque necessary to bring it to rest in 20 seconds? So omega 1 is equal to 240 rpm. 240 into 2 pi divided by 60 radians per second. So this is 8 pi radians per second.
So अब कह रहा है if the torque is due to the force applied tangentially on the rim of the wheel, what is the magnitude of the force? Assume that mass of the flywheel is concentrated at its rim. So मतलब मास अगर concentrated at the rim है, मतलब ये रिंग का शेप ले रहा है ना, रिंग की तरह होगा. रिंग के वजह से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, so this is equal to mr square. So फ्लाईव्हील का एक रिंग के वजह से moment of inertia of flywheel I of flywheel is equal to mr square 25 into 0.2 into 0.2. So 1 हो गया इसका 1 kg मीटर स्क्वायर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया. अब bring it to rest in 20 seconds, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 रेडियंस पर सेकेंड. कितने टाइम में? 20 सेकेंड्स में. अल्फा अगर हम लोग निकालेंगे, so alpha is equal to omega 2 minus omega 1 by t, which is equal to final angular velocity 0 minus 8 pi divided by 20. So minus 2 pi by 5 radians per second square. Torque is equal to I alpha करेंगे 1 into minus 2 pi by 5 न्यूटन मीटर. अब फोर्स इंटू रेडियस r इज इक्वल टू टॉर्क. हम लोगों को F निकालना है. F इंटू r 0.2 है. दिस इज इक्वल टू टॉर्क minus 2 pi by 5 हो गया. F is equal to minus 2 pi by 5 into 0.2. 5 into 0.2 1 होता है, तो this is equal to minus 2 pi होगी. So this is minus of 6.28 मीटर. क्लियर है? नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि वो डिसेलरेट करेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव साइन आ रहा है. क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. Now the question, next question is, a car moves on a road with a speed of 54 km per hour. Okay. The radius of the wheel is 0.35 meter. What is the average negative torque transmitted by its brake to the wheel if the car is brought to rest in 15 seconds? Omega 1 या जो V1 is equal to 54 km per hour.
which is equal to 54 into 5 by 18. So this is 15 meter per second. So initial velocity 15 meters. The radius of its wheel is r is equal to 0.35 meter. If the average negative torque transmitted by its brake is brought to rest, means final velocity is equal to 0 and time is equal to 15 seconds. अब हम लोग ओमेगा 1 अगर हम लोग निकालते हैं, राइट, सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू v1 by r. So this is 15 by 0.35 and omega 2 is equal to 0. Alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon t. 0 minus 15 by 0.35 divided by time t, 15 seconds. So this is equal to, ये देखिए ये 15 और ये 15 कट जाएगा, -1 by 0.35, which is equal to -100 by 35 radian per second square. So this is -20 by 7 radian per second square. तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, तो नेगेटिव टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा, विच इज आई का वैल्यू है 3 -20 by 7. So this is -60 by 7. So 8.57 हो गया. This is -8.57. Clear बच्चों? Yes, sir. हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question, a grindstone has moment of inertia of 6 kg meter square. I is equal to 6 kg meter square. A constant torque is applied and the grindstone is found to have a speed of 150 rpm. So omega 10 seconds after starting from rest means omega 2 is equal to 150 rpm, 150 into 2 pi divided by 60. So which is equal to 5 pi radians per second. Omega 1 is equal to 0 radians per second. Time taken
time taken is equal to 10 seconds. अब आपसे कह रहा है टॉर्क निकालने के लिए तो पहले तो अल्फा निकाल लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी. So this is 5 pi minus 0 by 10, which is equal to pi by 2. Now we have to calculate the torque. Torque is equal to I alpha. So 6 into pi by 2. So which is equal to 3 pi Newton meter. Clear बच्चों? हो गया बच्चों? Yes, sir. Next question. A body whose moment of inertia is 3 kg meter square is at rest. So moment of inertia I दे रखा है 3 kg meter square is at rest. It is rotated for 20 seconds with a moment of force 6 Newton meter. मतलब torque दे रखा है 6 Newton meter. Time दे रखा है 20 seconds. Initial angular velocity is equal to 0 दे रखा है at rest. Now get a find angular displacement of the body. ठीक है, तो अल्फा पहले निकाल लेते हैं. Torque is I into alpha. 3 is equal to, 6 is equal to 3 into alpha. So alpha is equal to 2 radians per second square. Now, once we have got the value of alpha, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Theta is equal to omega naught 0 into कितने टाइम तक 20 plus half into alpha 2 into 20 into 20. So theta is equal to 0 plus 20 into 20, 400. So angular displacement हम लोग का निकल गया. This is equal to 400 radian. What is the work done? Work done is equal to tau into theta. So this is 6 into 400, 2400 joules. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next question. A wheel initially at rest rotates for 2 seconds under angular acceleration of 3 radians per second square. तो wheel initially rest पे तो omega naught is equal to 0 हो गया, 0 radians per second. Rotates for 2 seconds.
time to t is equal to 2 seconds. Under angular acceleration, alpha is equal to 3 radians per second square. Find angular velocity acquired in 2 seconds. Omega is equal to omega naught plus alpha t. 0 plus 3 into 2. So this is 6 radians per second. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में आपको कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 2 seconds. So theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Theta is equal to omega naught is 0. 0 into 2, half into 3 into 2 into 2 into 2. So ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. Theta is equal to 6 radians. Torque acting on the wheel, if its moment of inertia is 12, torque is equal to I alpha. So 12 into 3, 36 Newton meter. Clear बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next question है, a solid cylinder of mass 5 kg and radius 30 centimeter. तो solid cylinder है, mass m is equal to 5 kg, radius 30 centimeter मतलब 0.3 मीटर हो गया. ठीक है. And free to rotate about its axis, receives an angular impulse of 3 kg meter square per second. So angular impulse, देखो impulse जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे f इंटू वी करते थे, यहाँ पे I इंटू ओमेगा करेंगे तो एंगुलर है. ठीक है. सो टॉर्क इंटू ओमेगा करेंगे तो एंगुलर इम्पल्स निकल जाएगा. ठीक है. और एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. राइट. सो सिमिलर अब कह रहा है कि angular impulse of 3 kg meter square per second initially. So 3 kg meter square per second. Now initially followed by a similar impulse after every 4 seconds. तो ये जो impulse है ये after every 4 seconds we are applying. What is the angular speed of the cylinder 30 seconds after the initial impulse? तो हम लोग को angular speed निकालना after 30 seconds. तो कितने ऐसे impulse होंगे उनसे हम लोग को पता चलेगा, given that the cylinder is initially at rest. So angular impulse is equal to change in angular momentum. ठीक है. So angular impulse is equal to change in I times omega 2 minus omega 1. अब हमें पता है कि सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये हाफ mr स्क्वायर होगा इनटू, इनिशियली ये था रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फाइनल ओमेगा 2 माइनस 0 हो जाएगा. ठीक है. इज इक्वल टू 3.
अब ये सब वैल्यूज पुट कर लो. 3 is equal to half into mass 5 into radius 0.3 into 0.3 into omega 2. ये इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10. ठीक है, सो ये हो गया 10 into 2, तो ये 5 1 जा 5 2 जा 4 by 0.3 is equal to omega 2. सो इसको हम लिख सकते हैं 40/3 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है, सो इससे अब हमारा आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है सो पहले मतलब एक इसके बाद क्या निकालेंगे. सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी है, राइट. सो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई टी. सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारा, ठीक है, ये 40/3 निकल गया है, माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई टाइम टी, 4 सेकेंड निकाल लेंगे, तो ये 10/3 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. ये अल्फा का वैल्यू हमारा निकल गया. ठीक है, सो हमें निकालना है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिलेंडर 30 सेकेंड आफ्टर द इनिशियल इम्पल्स. तो 30 सेकेंड आफ्टर द इनिशियल इम्पल्स. अब ये जो इसको कैलकुलेट करते हैं अगर ये वैल्यू को, तो हमारा देखो आफ्टर एवरी 4 सेकेंड, मतलब पहला तो 0 सेकेंड पे लगा था, फिर 4 सेकेंड पे लगा, फिर 8 पे लगा. ठीक है, 12 16 20 24 26 और सॉरी 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32. ठीक है, तो लास्ट इम्पल्स जो 28 पे हमने दिया था वो 32 सेकेंड तक वो इम्पल्स काम करेगा. तो जो तुमने इसके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इम्पल्सेस आपने प्रोवाइड किए हैं, है ना. और हर इम्पल्स में जो इसका आप जो इसका फाइनल ओमेगा निकालोगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. तो यहाँ पे जो टाइम हम पुट करेंगे ये 32 सेकेंड अगर हम लोग पुट करते हैं तो भी सेम वैल्यूज आएगा. मतलब कि आपने जो इस पे दिया है, इसको दोनों तरह से कर सकते हैं. मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वाला भी करके हम लोग कर सकते थे कि कितने ऐसे इम्पल्सेस हैं, उससे भी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते थे. तो उससे क्या करेंगे कि 40/3 को, मतलब एक एंगुलर इम्पल्स पे इतना स्पीड गेन कर रहा है, तो 8 एंगुलर इम्पल्सेस हैं, तो ये कंफ्यूजिंग है, इसको छोड़ दो. 8 एंगुलर इम्पल्सेस हैं, हर इम्पल्स में 40/3 गेन कर रहा है, तो 8 में 8 into 40/3 गेन करेगा. So this is equal to 320/3, which is equal to 106.7 radians per second. This is the final after 30 सेकेंड जो उसका एंगुलर स्पीड होगा ये निकाल. क्लियर है बच्चों? तो ये अल्फा निकालने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर हम लोग यहीं पर से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये 40/3 है और इसमें हम लोग. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. लिख लो तुम लोग इसको, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, ओके. फिर चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन. Thank you, sir. Thank you, sir.